call upon Brother Samson from Vijayawada for a short testimony. भाई सैमसन जो विजयवाड़ा से आए हैं एक छोटी सी गवाही हमारे बीच में देंगे. Praise be to the holy name of God. I praise and thank my Lord God who has given me this blessed opportunity to stand in the midst of the saints and in the holy congregation to glorify His name. पवित्र संतों के बीच में, पवित्र कलीसिया के बीच में खड़े होने के लिए जो परमेश्वर ने सुअवसर मुझे दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. My Lord God who has chosen me before the foundation of this world and before I formed in the womb of my mother, for all the good things which He has done in my life, I would like to tell all those good things in a short. मेरे माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले जो मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है, उन सारे भलाइयों के बारे में मैं साक्षी के माध्यम से कहने के लिए आग्रह करता हूँ. When I was 3, my whole family came to this fellowship. जब मैं 3 साल का था, उस समय में हमारा ये सारा परिवार इस सच्चाई में आया. So, at the age of 3, my father has dedicated to God that, and he had made a promise with God that if you keep my child in a good health and in good condition until his youth life, I will give my child for your ministry. मेरे 3 साल के आयु के समय में मेरे माता पिता ने मुझे परमेश्वर के हाथ में यह कहकर समर्पण किया कि अगर तू इसके जवानी के समय तक इसको एक अच्छे स्वास्थ्य में और अच्छे रीति में संभाले रखेगा तो मैं तेरे लिए इसे दे दूंगा. So the day when he made a dedication with God, from that day onwards, my father, he was always trying to bring up each and every his children in the spiritual life. और उस दिन से, जिस दिन से मेरे माता पिता ने मुझे समर्पण किया, तब से लेकर के हम हर एक बच्चों को एक आत्मिक रीति में मेरे माता पिता हमको बढ़ाते आए. We are 4 brothers and 2 sisters. हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं. So each and every one, my dad is every day he teaches how to pray, how to worship the God, how to read the word of God, and every week we have to by heart every psalms from the scripture, from Psalms 1, 2, 3, and in a week we have to by heart and tell to my father. और मेरे माता पिता हमें से हर एक को हर एक दिन प्रार्थना करना सिखाते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सिखाते थे, आत्मिक जीवन कैसे जीना है इस बात को बता करके देते थे. और साथ ही साथ हर एक सप्ताह परमेश्वर के वचन से, विशेष करके भजन संगीता से एक गीत को पढ़ करके, याद करके, मनन करके उसे बोलने के लिए भी हमें कहते थे. Praise be the holy name of God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. So like that until my primary education and secondary education, so with the fear of my father, I used to read the scripture, I used to pray, and I used to praise God. और मेरे इस प्राथमिक शिक्षा के समय में और पढ़ाई के समय में मेरे माता पिता के भय को मानते हुए मैं धर्मशास्त्र को पढ़ता था और प्रार्थना भी किया करता था. All these things I used to do only for the fear of my father. और ये सारी बातें मैं इसके लिए करता था केवल मेरे पिता का भय के कारण. If we won't do all these things, surely we'll get a beatings. अगर हम ये सारी कामों को ना करेंगे तो निश्चय हमें मार पड़ेगी. So like that, so after finishing my secondary school, so slowly I entered into the world. और मेरे उच्च तालीम को मैं प्राप्त करके आगे बढ़ने के समय में मैं धीरे धीरे जगत की ओर बढ़ने लगा. So all the desires of the world started working in my life. सारी संसारी की आशा जो है वो मेरे जीवन में आने लगी. So having all those desires, even though I used to pray in my house. ये सारी आशा, मेरे अभिलाषा मेरे अंदर रहते हुए भी मैं अपने घर में प्रार्थना किया करता था. Because of my fear of my father, I used to regularly go to Sunday attend the Sunday school service. और पिता के भय के कारण निरंतर में रविवारी आराधना में जाया करता था. I used to attend the tarry meeting. इंतजार सभा में भी मैं जाया करता था. So even though I used to attend the Sunday service and tarry meeting, there was no spiritual growth at all in my life. यद्यपि मैं रविवारी आराधना और बाट जोनी की सभा में मैं जाता, तथापि मेरे आत्मिक जीवन में कोई भी उन्नति नहीं था. So one day in 1998, I attended a youth camp in Secunderabad Center. और सिकंदराबाद सेंटर में 1998 में मैं एक जवानों के कैंप में मैं भागी हुआ. In that youth camp, I repented before the presence of God, before God. और परमेश्वर के सम्मुख में उस जवानों की सभा में मैंने मन परिवर्तन किया. So that day he has anointed me. और उस दिन परमेश्वर ने मुझे अभिषेक भी किया. He anointed me with a great anointing. और मुझे एक बहुत बड़ी अभिषेक से अभिषेक किया. And that day itself I took a water baptism. और उसी दिन मैंने पानी का बपतिस्मा भी लिया. So even though I took a water baptism, even though I was anointed by God,
I used to not keep none of the commandment of God. और यद्यपि मैं पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का शक्ति को प्राप्त किया, तथापि परमेश्वर के कोई भी आज्ञाओं का पालन मैं नहीं करता था। I know that my father had dedicated my life for his ministry. मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने सेवकाई के लिए मुझे समर्पण किया है। When I was three, I was dedicated to God. Oftenly, this word my father used to tell me. और जब तीसरे साल में मेरे पिताजी ने मुझे परमेश्वर के लिए समर्पण किया, बारंबार वो मुझे इस प्रकार की बातों को बताया करते थे। So why he used to tell me? Because that I should not enter in any things of this world. और मुझे ये बात क्यों बताया करते थे? ताकि मैं इस संसार की किसी भी बातों में शामिल ना हो जाऊं। So after receiving anointing, by the grace of God, I got deliverance from some of the evil powers. और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा शैतानी कुछ प्रकार की आदतों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा भी दिया। After receiving anointing, some of the bonds which was in my life, which was in my life, God had delivered me from all the bands. मेरे जीवन में जो बंधनें दिखाई देती थी, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने इस बंधनों से मुझे छुटकारा दिलाया। So while I was going to church and attending services, in those services, God used to speak with me by His word, by His prophecy. Even though while through the word of God, through the prophecy, I used to recognize that God is speaking with me. Even though I recognize, but I was not keeping all those words. और जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में जाता, आराधना में जाता, उस समय में मेरा परमेश्वर भविष्यवाणी के माध्यम से, वचन के माध्यम से मुझसे बातें करता था। यद्यपि वो मुझसे भविष्यवाणी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से बातें करता, तथापि उन सारी बातों को मैं स्मरण में नहीं रखता। The thing is that in my life I had only two desires. बात यह है कि मेरे जीवन में केवल दो आशा थी। For why I should not keep the commandment of God and the word of God, only the two reasons. और क्यों मैं परमेश्वर के सारे बातों को नहीं मानता या उसके वचनों को पालन नहीं करता, उसका केवल दो कारण है। I was very fond of football. मेरे को फुटबॉल जो खेल है मुझे वो बहुत पसंद है। Secondly, I was very fond in bodybuilding. और दूसरा मेरे शारीरिक गठन को bodybuilding. शरीर के गठन को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। So due to these things, due to these two things, in my spiritual life I was not able to grow. और ये दो आग्रह मेरे जीवन में होने के कारण मैं मेरे आत्मिक जीवन में मैं बढ़ने नहीं पा रहा था। So I was very much addicted to this bodybuilding. और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं अपने शारीरिक गठन को मैं करूं। Every day morning in my family, every day 4 o'clock, they'll get up and they do the praising. और हर एक दिन सुबह के वक्त में 4 बजे उठ करके वे लोग स्तुति प्रार्थना किया करते थे। So all my brothers, my father, my sister, my mother, they will be praising. But myself, I will go for running and for exercise. और मेरे घर में सुबह के 4 बजे मेरे घर के सारे लोग जब स्तुति प्रार्थना करते थे, तब मैं बाहर दौड़ने के लिए और शारीरिक व्यायाम करने के लिए जाता था। I will get up by 4 o'clock. I'll go out and come by 6 o'clock. और मैं सुबह के 4 बजे जाता और वापस 6 बजे आता। So every day like this, after finishing my 10th class, so I was doing my inter classes. So in those days, like this, continually 2-3 years I did like that. और मेरे 10वीं कक्षा के बाद जब मैं आगे की पढ़ाई में मैं था, तो निरंतर रीति से 2-3 वर्ष तक मैं ऐसा ही करता रहा। While returning from my college also, I used to go to gym directly. I won't come to my house. I used to go to gym. और कॉलेज से वापस आने के समय में मैं सीधे घर में नहीं आता, मैं वहां से सीधे जिम में चले जाता। So much in this way I was born to this bodybuilding. और इस प्रकार इस रीति से मैं इस शारीरिक गठन के बातों में मैं बंधा हुआ था। But my father always used to scold me that you're desiring a body, you're desiring a flesh. The lust, it is a lust in your body, that is a lust in the flesh. The lust of flesh is an adultery. और मेरे पिताजी मुझे इस प्रकार करते थे कि तू अपने शरीर को प्यार करता है, तो अपने शरीर की अभिलाषा रखता है, और ये जो शरीर की अभिलाषा जो तेरे अंदर है वो एक व्यभिचार के तुल्य है। So building a body, I used to think that it's good for health. We can keep our health, we can preserve our health. But spiritually, my father used to tell that lust of flesh it is an adultery. मैं इस प्रकार सोचता था कि शारीरिक गठन करना स्वस्थ रहने का एक अच्छा रीति या अच्छा कारण है,
किंतु आत्मिक रीति से मेरे पिताजी मुझे यही कहा करते थे कि तो अपने शारीरिक गठन को जो कर रहा है वो एक व्यभिचार के तुल्य है। Whenever my father tells this word, I should get anger upon my father. और जब कभी भी मेरे पिताजी इस बात को कहते मैं उसके ऊपर क्रोधित हो जाता। I should think that why my father is telling that I'm doing adultery. और क्यों मैं इस प्रकार सोचता कि क्यों मेरे पिताजी मुझे इस प्रकार कह रहे हैं कि मैं एक व्यभिचारी हूं। After coming to the ministry, I came to know that lust of flesh, loving the flesh, loving a body, it is an adultery. और इस सेवा में आने के बाद ही मैं इस बात को जानने पाया कि शरीर को प्रेम करना ही एक व्यभिचार के समान। So I was born like that. और मैं इस प्रकार एक बंधन में था। So I used to not hear the word of my father. और इस प्रकार मैं मेरे पिता के शब्दों को नहीं सुनता। I didn't hear the voice of my saints. और मेरे संतों के सब शब्दों को भी मैं नहीं मानता। The word which was spoken by God, I didn't hear His word. और जो परमेश्वर मुझसे कहता मैं उसको भी नहीं सुनता। I was walking in my own ways. मैं अपने ही मार्ग में चल रहा था। So like this, I was in many years I walked like that. और ऐसे ही कई सालों तक मैं चलता रहा। So I used to not attend the praising in my house. और मैं मेरे घर में स्तुति भी नहीं करता। Only night praising I'll sit in my house. और केवल रात्रि स्तुति प्रार्थना में मैं घर में बैठता था। Morning praising I only in my house. और जब सुबह की स्तुति प्रार्थना होती तो मैं घर में नहीं होता। So like that, my life was going on. और इस प्रकार मेरा जीवन में यापन कर रहा था। Then God kept a thorn in my body. और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया। There were one sickness came to me. और मेरे शरीर में एक बीमारी आई। That is a white jaundice. और वो एक व्हाइट पीलिया की बीमारी है। That day I came to know that there are 3 kind of jaundice. और उस दिन मुझे पता चला कि ये पीलिया की बीमारी 3 प्रकार की होती है। There's yellow jaundice is there, red jaundice is there, white jaundice is there. और हल्दी रंग का जो ये पीलिया की बीमारी, सफेद रंग का पीलिया की बीमारी और लाल रंग का पीलिया की बीमारी। Red jaundice means our eyes will become red. और ये लाल रंग का जो पीलिया की बीमारी है उसमें हमारी आंखें वो पूरा लाल हो जाएगा। Yellow jaundice means our eyes will become yellow. और जो हल्दिया जो पीलिया की बीमारी है उससे हमारी आंखें जो है वो पूरी हल्दी रंग का हो जाएगा। White jaundice is very dangerous. और ये जो सफेद जो पीलिया की बीमारी है वो बहुत ही खतरनाक है। We can't recognize in our eyes. हम लोग हमारी आंखों को ही देखने नहीं पाएंगे। Because eyes are white. क्योंकि वो आंख पूरा सफेद हो जाएगा। So this sickness came in my body. और ये बीमारी मेरे शरीर में आया। So day by day I'm becoming weak. और मैं हर एक दिन दुर्बल होते गया। So I was not able to recognize that I'm becoming weak. और मैं इस बात को जान भी नहीं पा रहा था कि मैं दुर्बल होते जा रहा हूँ। So I was not taking my food properly. और मैं ठीक से खाद्य पान भी नहीं करता। But regularly I used to do my exercise. किंतु मैं निरंतर रीति से मैं शारीरिक व्यायाम करता रहता। So my neighbor, one old mother was there. और मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग माँ थी। She recognized my health. और उसने मेरे स्वास्थ्य को देखा। She has recognized that this boy is becoming weak. और उसने इस बात को अनुभव किया कि ये लड़का बहुत ही दुर्बल हो गया है। Then she called me. और उसने मुझे बुलाया। And she had checked my eyes. और उसने मेरे आंखों को देखा। And she told me that you got a white jaundice. और उसने मुझे कहा कि तुझे एक सफेद पीलिया की बीमारी हुई है। So this thing I went and told to my father. और ये बात जाकर के मैं मेरे पिता को कहा। When I told this thing to my father. और जब ये बात मैंने मेरे पिताजी को कहा। My father only one thing he told. और मेरे पिताजी ने उस समय केवल एक ही बात मुझे कहा। The day when we came to this fellowship. और जिस दिन हम लोग इस सच्चाई में आए थे। Until now, it passed 20 years passed. अभी तक 20 साल बीत चुका है। These 20 years, you know that in our family, to anyone, what kind of sickness or weakness came, never we went to hospitals or neither we took any medicine. इस 20 सालों में जब कभी भी हमारे परिवार में किसी को भी किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हुई हो, हम लोगों ने कभी भी दवाई का सेवन नहीं किया और न ही हम कभी अस्पताल में गए। My father told that you know this thing very well. और तू मेरे पिताजी ने कहा कि ये बात तो अच्छे से जानता है। Really, in these 20 years, to my brothers and my sister and myself, many kinds of weakness and sicknesses came. हाँ, इस बीते 20 साल में हमारे घर में परिवार में भाई बहनों के बीच में कई प्रकार की बीमारी तो आई थी। But our living God, Jesus Christ, being an healer, He has healed each and every sickness in my family. किंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे वैद्य के नाई हमारे परिवार के हर एक बीमारी में हमें चंगाई दिलाया। I believe that Jesus. और मैं उस यीशु मसीह को विश्वास करता हूं। And what the father my father had told me, yes, that is true. और मेरे पिताजी ने जो ये सारी बातें मुझे कहा ये सत्य था। Then he told me, just you sit in the house and pray. और उसने मुझे कहा कि तू घर में जा और बैठ के प्रार्थना कर। So that day, from that day onwards,
I started to pray और in my house. और उसके बाद मैं घर में जाकर के उस दिन से घर प्रार्थना करने लगा। Before I used to not do praising also. और उससे पहले तो मैं स्तुति नहीं करता था। But the day when the sickness came to me, that God has made me to sit in my house and pray. और जिस दिन से बीमारी मुझे पकड़ी तब से परमेश्वर ने मुझे घर में बैठ करके स्तुति और प्रार्थना करने के लिए कहा। The morning praising is only we have to do for 1 hour. और सुबह का स्तुति प्रार्थना केवल 1 घंटे के लिए हम लोग करते थे। But to get deliverance from this sickness, I used to pray hours and hours in my house. किंतु इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मेरे घर में मैं घंटों घंटों बैठ करके स्तुति प्रार्थना करता था। So like that 1 month passed, 2 months passed, 5 months passed. और इसी प्रकार 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना बीता। I didn't get deliverance from my sickness. मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा ना मिला। Oh, all my neighbors, they started to scold my father and mother. और मेरे सारे पड़ोसी लोग मेरे माता पिता को डांटने लगे। They used to telling God, God, God. और लोग इस प्रकार कहते थे कि तुम लोग केवल प्रभु प्रभु करके कह रहे हो You will kill this child. और इस प्रकार कहते हुए बच्चे को मार डालोगे। So like that, many of my neighbors, they scolded my relations, and they scolded my father and mother. और इस प्रकार मेरे कई पड़ोसी लोग, मेरे कई हमारे परिवार के कई सगे संबंधी लोग मेरे माता पिता को डांटने लगे। So in these 5 months, whatever the bodybuilding I did, so I lost everything. और इस बीमारी के 5 महीने में जो भी कुछ शारीरिक व्यायाम करके मैंने शारीरिक गठन को प्राप्त किया था वो सब कुछ मैंने खो दिया। I became very thin. और मैं बहुत ही दुबला हो गया। There was no blood in my body. मेरे शरीर में खून नहीं था। My nails became white. और Leg, मेरा जो पाँव था वो पूरा सफेद हो गया। nakhun. मेरा नाखून जो है वो पूरा सफेद हो गया। My nails became white. और मेरा नाखून पूरा सफेद हो गया। Due to the lack of blood in my body, my hair also fell down. और मेरे शरीर में खून की कमी होने के कारण मेरे बाल भी झड़ने लगे। Praise be the holy name of God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So like that 5 months I was in sickness. और इस प्रकार 5 महीने तक मैं बीमार था। I came to the death point. और मैं मृत्यु के बहुत ही समीप आ गया। I was not able to do my own work. मैं अपना ही काम करने नहीं पाता। Before I should depend on my strength. Before I used to depend upon my strength. इससे पहले तो मैं अपने शारीरिक बल के ऊपर निर्भर करता था। But in these 5 months I used to depend upon my 2 brothers. और इस 5 महीने के बीतते बीतते मैं मेरे 2 भाइयों के ऊपर निर्भर करने लगा। For every work they have to help me. हर एक काम के लिए वे लोग मुझे सहायता करना चाहिए। For every personal work they have to help me. मेरे हर एक व्यक्तिगत कामों के लिए भी मेरे भाई मुझे सहायता करना चाहिए। But in these 5 months, किंतु इस 5 महीने में in my village, मेरे गांव में the 2 people died with the same sickness. इसी बीमारी से 2 लोग मर गए थे। 1 brother and 1 sister. एक भाई और एक बहन। So I got a fear of death in my heart. और उस समय में मेरे अंदर एक मृत्यु का भय आ समाई। So I thought I will be the 3rd person in this village to die. और मैंने ये सोचा कि मैं इस गांव में शायद तीसरा व्यक्ति होऊंगा जो इस बीमारी से मरूंगा। Because we 3 had the same sickness. क्योंकि हम तीनों को एक ही बीमारी है। Those 2 people died. वो 2 मर गए। I thought I'm the 3rd person to die. और मैं तीसरा हूँ जो मरूंगा। The fear of death started in my life. मेरे जीवन में मृत्यु का भय आ गया। Because of that fear also I became very weak. और इस भय के कारण में मैं और भी दुर्बल हो गया। But one day, किंतु एक दिन, one day night, एक रात के समय में, without my knowledge, I was crying. मेरे ज्ञान के परे मैं रो रहा था। I was weeping. I was shedding tears. और मैं आंसू को बहा रहा था। So that was up to night 11:30. और रात के 11:30 बजे थे। Also my father and my grandmother was there. They were not able to do anything to me. मेरे पिताजी, मेरे दादी वहां पर थी, लेकिन वो लोग कुछ भी मेरे लिए करने नहीं पाते थे। My mother and my grandmother, they were not able to do anything to me. और मेरी माँ और मेरी दादी जो वो मेरे लिए कुछ भी करने नहीं पाते थे। My father used to come return from his office after 12 o'clock only. और मेरे पिताजी जो रात में जब कार्यालय से वापस आते तो रात के 12 बज जाते। Oh, so my dad came back after 12. और मेरे पिताजी जो है रात के 12 बजे के बाद जब आए, my mother told that this boy is crying. Why is crying? We don't know. और तब मेरे पिताजी को माँ ने कहा कि ये लड़का देखो रो रहा है, और क्यों रो रहा है मुझे नहीं मालूम। Oh, so immediately my father knelt down. और तुरंत मेरे पिताजी घुटना टेकने लगा। So from that the time when he came, he didn't change his dress also. Like that, he knelt down. And until morning 5 o'clock, he was going on praying. और ऑफिस से आए थे, अपने वस्त्र को उन्होंने बदला भी नहीं था,
वो घुटने टेके सुबह के 5 बजे तक निरंतर घुटने में होकर के मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। He took an oil and he prayed it and he applied that oil upon my body. और एक तेल को लिया, प्रार्थना किया, मेरे शरीर में उस तेल को लगाया। While my father was praying, और जब मेरे पिताजी प्रार्थना कर रहे थे, oh, so then I stopped my crying and I slept. मैं मेरा रोना को बंद किया, मैं नींद में सो गया। That day God visited me. उस दिन परमेश्वर ने मेरा संदर्शन किया। On the roof I had seen a vision. मैं छत पर एक दर्शन देखा। So that vision that one old man came that upon that roof. और मैंने देखा दर्शन में कि एक बुजुर्ग व्यक्ति छत के ऊपर आया है। His hair was white and his beard was white. और उसका जो बाल है और उसका जो दाढ़ी है वो श्वेत रंग का है। So that old man was laughing at me. और वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे देख करके हंस रहा था। And yeah, he laughing at me. He told that I only kept this sickness to you. और उसने कहा कि मैंने ही ये बीमारी तुझे दिया है। And I only brought this fear of death in your life. और मैंने ही तेरे अंदर मृत्यु का भय को लाया है। Because you didn't keep my word. क्योंकि तूने मेरे वचनों को नहीं रखा। So early morning I got up and told this thing to my father. और सुबह उठ करके मैंने ये सारी बातों को मेरे पिताजी को बताया। And then my father told that the whole man is a Jesus. And the verse which he spoke, my father saw that in Proverbs 1st chapter 24 to 27 verse. और मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति तूने दर्शन में देखा वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो वचन उसने कहा वो नीति वचन 4:24 से नीचे लिखा गया वचनों को उसने दोहराया So है। whatever verse are written, that the same verse that whole man has spoken with me. और जो भी कुछ वचन को वहां पर लिखा हुआ मैंने देखा वही सारी बातों को ये बुजुर्ग व्यक्ति ने भी कहा था। So I felt very ugly. और मेरे को बहुत ही खराब लगा। I repented before the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मन परिवर्तन किया। I am unworthy. Yes, I am unworthy that man Jesus came and spoke with me. मैं एक अयोग्य व्यक्ति तथापि यीशु मसीह आकर के मुझसे बात किया। From the next day, the day when I saw vision, from the next day onwards, I recovered my health. और जिस दिन यीशु मसीह ने आकर के मेरा संदर्शन किया, अगले दिन से मैं मेरे स्वास्थ्य को दोबारा पाने लगा। That Jesus had healed my body. यीशु मसीह ने मेरे शरीर को चंगा किया। He removed every sickness from my body. मेरे शरीर से सारी बीमारी को निकाल दी। Within 1 month, I recovered my health. और 1 महीने के अंदर मैं मेरे स्वास्थ्य को दोबारा पा लिया। Then I made a decision. तब मैंने एक निर्णय लिया, The God who gave me life, I will give my life unto Him only. जिस प्रभु ने मेरे लिए अपना जीवन दिया, मैं भी अपना जीवन उसके लिए दे दूंगा। Then I submitted my life to the ministry. और मैंने अपना जीवन सेवकाई के लिए समर्पण किया। God has anointed me for this ministry in the 2005. और 2005 में इस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। Now I'm doing my ministry in Vijayawada Center. मैं वर्तमान विजयवाड़ा सेंटर में मेरे सेवकाई को कर रहा In हूँ। this ministry also many trials, temptation, weakness, sickness came, but the living God, my faithful God is with me. और इस सेवकाई में रहने के समय भी कई प्रकार की बीमारी, कष्ट, क्लेश, दुर्बलता मेरे जीवन में आई, किंतु प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है अभी तक मुझे सहायता किया है। I request all your valuable prayers that for what purpose the God has called me, that purpose should be fulfilled in my life. और मैं आपसे आपके बहुमूल्य प्रार्थना का अनुरोध करता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। For all the good things God has done in the life of this dear brother, shall we praise God for that? इस भाई के जीवन में किए हुए सारे भलाइयों के लिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.